Good morning, dear student. I hope that you had discussed, you had tried to solve the exercise 2 questions which is going in your textbook. Right now, I am going to solve that particular exercise question one by one. So right now, the very first question: two charges Q1 and Q2. The values of Q1 is 5 into 10 raised to power 8 minus 8 centimeter and Q2 is minus 3 into 10 raised to power minus 8 centimeter are located 16 centimeter apart. It means this is Q1 and this is Q2 and are 16 centimeter apart, 16 centimeter apart to each other. At what points on the line joining two charges are the electric potential is 0? Take the electric potential at infinity 0. इट मीन्स आपको बेटा क्या कैलकुलेट करना है, ये आपका Q1 दिया है, ये Q2 दिया है. Q1 जो दिया बेटा वो 5 into 10 raised to power minus 8 एंड Q2 जो है वो बेटा 3 minus 3 into 10 raised to power minus 8. इट मीन्स आपको ये पता है कि सर हमें पता है कि V नेट जो होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी, तो हम लिख सकते हैं V1 plus V2 सिंपली. अगर मैं बात करूं कि V1 अगर आपका और V1 plus V2 क्या चाहिए, हमें 0 चाहिए. V1 plus V2 क्या चाहिए, 0 चाहिए. अच्छा, आप बोलोगे कि सर V1 plus V2 एक तो ये हो सकता है कि यहाँ पॉजिटिव की वजह से पॉजिटिव होगा और इसकी वजह से नेगेटिव होगा, मतलब एक पॉइंट तो ऑन द लाइन जॉइनिंग बिटवीन देम हो सकता है. एक पॉइंट हो सकता है बेटा कि इससे दूर हो जाए. इससे दूर क्या हो जाए, क्यों हो जाए, क्योंकि बेटा इसका पॉजिटिव होगा तो इसका इफेक्ट होगा और इसका नेगेटिव होगा तो वो इफेक्ट होगा. तो आपके पास दो पॉसिबल पॉइंट्स है. बट अगर ऑन द लाइन जॉइनिंग बिटवीन देम पूछा जाए, ये पहला केस, तो उसके बारे में अगर मैं पहले केस के बारे में बात करता हूं तो V1 plus V2 should be equals to 0. Suppose I am going to consider the distance of that particular point from Q1 is x. So the distance of Q2 क्या हो जाएगा बेटा, 16 minus x. सिंपली अगर हम बात करते हैं V1 plus V2 should be equals to 0 और V क्या होता है, एक पॉइंट चार्ज की वजह से V जो होता है बेटा वो होता है KQ upon R. KQ upon R होता है एक जनरल पॉइंट पे, एक पॉइंट चार्ज की वजह से डी R डिस्टेंस पे एक पॉइंट है तो उसकी वजह से पोटेंशियल जो गिवन इज KQ upon R. Here we are going to put the values of V1 and V2. So V1 is KQ, Q is 5 into 10 raised to power minus 8 upon R, which is we had discussed x plus K into minus 3 into 10 raised to power minus 8 upon R, which is 16 minus x, which is 16 minus x should be equals to 0. K से K कैंसिल आउट होकर बेटा 0 में चला जाएगा. इधर आपका बचेगा 5 into 10 raised to power minus 8 और ये वाला टर्म जो माइनस का है तो उधर जाके इक्वल टू के उधर राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा. सो 5 into 10 raised to power 8 upon x should be equals to 3 into 10 raised to power minus 8 upon 16 minus x, 16 minus x. अच्छा, 10 raised to power 8 से 10 raised to power 8 कैंसिल आउट हो जाएगा. मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो ये 16 5 से 80 minus 5x should be equals to 3x. so 5x से राइट हैंड साइड जाएगा तो 8x हो जाएगा, तो 8x should be equals to 80. so x equals to 10 centimeter, x equals to 10 centimeter. so that is the potential at a point is 0, which is 10 centimeter away from Q1, 10 centimeter away from Q1. Okay, and we can say 6 centimeter from Q2. Now we are going to discuss about the second position, which is on the line joining outside the small charge. On the line joining outside the small charge, suppose this is the point is y. The point is y. Now we are going to solve similar to like that. Suppose at point Vy is 0. इस point पे जो है वो आपका potential 0 है, तो हम simply फिर से बोलेंगे कि V1 plus V2 should be equals to 0. V1 क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे कि सर V1 जो हो जाएगा K into 5 into 10 raised to power minus 8 KQ upon, अच्छा इस पॉइंट का डिस्टेंस क्या हो जाएगा बेटा, 16 plus y. ये डिस्टेंस हो जाएगा 16 plus y और प्लस K into minus 3 into 10 raised to power minus 8 डिवाइडेड बाई y should be equals to 0. अच्छा, K से K कैंसिल आउट होकर 0 में चला जाएगा, 10 raised to power चला जाएगा, ये माइनस है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो मैं लिखूंगा 5 upon 16 plus y should be equals to 3 upon y. 3 upon y, if we are going to cross multiply then we will get 5y equals to 48 plus 3y, 48 plus 3y. Okay, 48 plus 3y. Now we have to calculate the value of y again. So 2y equals to 48. 2y equals to 48. Okay, so y equals to 24 centimeter. Y equals to 24 centimeter. It means आपका ये जो पॉइंट है वो Q2 से 24 सेंटीमीटर है, तो Q1 से कितना हो जाएगा. तो आप बोल सकते हो कि Q1 से जो आपका जो पॉइंट होगा वो एक तो 10 सेंटीमीटर पे होगा और Q1 से एक दूसरा कितना होगा, तो 16 plus y, और 16 बोले तो
16 प्लस और y का वैल्यू कितना है बेटा 24, इट मींस 40 सेंटीमीटर. So we will get two neutral points where the potential is 0. First one is on the line joining between two charges, or we can say on the line joining from Q1 10 centimeter and the other point is from Q1 is 40 centimeter. Okay, आपको बेटा कुछ नहीं है, आपको जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कर रहे थे, फोर्स जीरो कर रहे थे, सिमिलरली आपको क्या जीरो करना है, आपको पोटेंशियल जीरो करना है. बट पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, तो हमें डायरेक्शन को कंसीडर नहीं करना, हमें डायरेक्ट ऐड कर देना है. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा. तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो गिवन है वो बोलना चाह रहा है रेक्टेंगुलर हेक्सागोन ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर. रेक्टेंगुलर हेक्सागोन है, उसका साइज कितना है बेटा 10 सेंटीमीटर है और उस पे ईच वर्टेक्स पे कितना रखा है 5 माइक्रोकूलम चार्ज रखा है. माइक्रो इट मींस 10⁻⁻⁶. आपसे पूछा गया पोटेंशियल पूछा है सेंटर पे, आपसे पोटेंशियल पूछा बेटा सेंटर पे. अच्छा, रेगुलर हेक्सागोन बोलूं तो रेगुलर मतलब जिसके ईच एंड एवरी साइड क्या है सेम है. ईच एंड एवरी साइड क्या है बेटा सेम है. तो ये हेक्सागोन है, हेक्सागोन के सेंटर पे अगर आपसे पूछा जाए और यहाँ Q रखा है ईच एंड एवरी वर्टेक्स पे और Q का वैल्यू जो गिवन है वो है 5 × 10⁻, Q = 5 × 10⁻⁶ कूलम. ओके, एंड द साइड सपोज ए है, वो कितना दिया बेटा 10 सेंटीमीटर दिया है. अगर मैं बात करूं कि ये रेगुलर हेक्सागोन है तो बेटा ये यहाँ से ये वाला एंगल जो है रेगुलर हेक्सागोन का एंगल जो होता है वो 120 डिग्री होता है. तो अगर मैं ये वाला एक बात करता हूं तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा बेटा 60 और ये वाला एंगल भी 60. तो ये क्या हो गया बेटा इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया. और इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया तो मतलब ये वाला अगर ए है तो इसका सेंटर से, इस सेंटर पे हमें वी कैलकुलेट करना है ना, वी कैलकुलेट करना. तो सेंटर से ये वाला डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा ए ही हो जाएगा, क्योंकि क्या बन गया आपको डिस्टेंस चाहिए वर्टिस से सेंटर की, क्योंकि मुझे VC चाहिए. तो V सेंटर क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर V1 + V2 + एंड सो ऑन अप टू V6. और we know that V = KQ/R, V = KQ/R, where Q same for all charges and R same for all charges. So we can say VC = 6 × V. VC = 6 × V. Okay, we have to calculate VC = 6 × V is KQ/R. KQ/R. Now put the value of 6 into K. The value of K is 9 × 10⁻⁹ and the value of Q which is given as 5 × 10⁻⁻⁶, 5 × 10⁻⁻⁶ upon R. So R क्या है बेटा, ये रेगुलर हेक्सागोन है तो इसके सारे साइड सेम है, तो सेंटर से वर्टेक्स का डिस्टेंस भी क्या होगा सेम होगा, which is 10 सेंटीमीटर. And whereas we are going to put the value in any formula in any chapter of physics, then we have to put into MKS system. MKS system means meter kg second. So we have to put the value of A in terms of meter and 10 centimeter, and we are going to convert it into meter. Then we will multiply it by 10⁻⁻². Solve the question, get the answer. The third question is two charges 2 microcoulomb and -2 microcoulomb are placed at point A and B 6 centimeter apart to each other. 6 centimeter apart to each other. ओके, आपसे कुछ ऐसा बोला गया है बेटा थर्ड क्वेश्चन में बोलना चाह रहा है कि आपका ए है और एक बी है, दो पॉइंट पे चार्ज रखें. ये बेटा आपका 2 माइक्रोकूलम है और ये -2 माइक्रोकूलम है. आपसे बोला गया है कि ये 6 सेंटीमीटर अपार्ट है. कितना है बेटा 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस है. इनका जो सेंट्रल डिस्टेंस है ए और बी का वो 6 सेंटीमीटर है. फिर आपसे बोला गया है आइडेंटिफाई एन इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ द सिस्टम. अगर आपसे बोला जाए कि सर ये एक डायपोल जैसा हो गया और डायपोल का इक्विपोटेंशियल सरफेस मतलब द पोटेंशियल एट विच इज सेम. अगर मैं बात करूं तो बेटा इसका ऑन द लाइन जॉइनिंग मिड पॉइंट जो होगा कौन होगा, परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग जो मिड पॉइंट होगा, या मैं बोलूं तो इसका इक्वेटोरियल पॉइंट जो होगा वो क्या होगा V0 होगा. V क्या होगा 0 होगा. मतलब ये इसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया. ये क्या हो गया बेटा इसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया. Whereas the potential is same, it doesn't matter 0 or non-zero, but the potential on this particular plane is 0. So we can say each and every point has a potential 0. So we can say this perpendicular plane to the line joining is act as a equipotential surface. Okay, the first is equipotential surface or perpendicular to the line joining both of charges. Second, what is the direction of electric field at every point on this particular surface? I told you whenever we had discussed electric potential equipotential surfaces, then at that particular case I told you one important point, that is electric potential surface के परपेंडिकुलर कौन होता है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होते हैं. और वी कैन से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, एंड वी नो इफ 2 coulomb is positive and this one is negative, so the direction of electric field lines originates from positive to negative. So the direction is like this, A to B and perpendicular to equipotential plane. So the answer of D
the direction of electric field line always perpendicular, the direction of electric field lines always perpendicular to the equipotential surfaces, and whereas here the equipotential surfaces is the perpendicular to the line joining to AB and perpendicular, so we can say the direction of electric field from A to B and perpendicular to the equipotential surface, A to B and perpendicular to the equipotential surface. The next question is spherical conductor of radius 12 centimeter. The next question 4 is spherical conductor of radius 12 centimeter has a charge of, see, R is given as 12 centimeter, so we have to put it into in terms of meter, so 12 into 10 raised to power minus 2 meter, and the charge is given as 1.6 into 10 raised to power minus 7, 1.6 into 10 raised to power minus 7 coulomb. Okay, uniformly distributed to on its surface. What is the electric field inside the sphere? Inside the sphere, as I told you in properties of conductor, we know that whenever a conducting sphere charged, then the all charge resides on its surface. All charge resides on its surface. Or as I told you in application of Gauss law, that whenever we are going to calculate electric field due to spherical sail, then we will get the graph between E and R like this. E and R like this. It means the electric field inside, E inside always 0. मैंने आपको कंडक्टर की प्रॉपर्टी में पढ़ाया था बेटा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इनसाइड कितना होता है, 0 होता है. क्यों होता है उसका मैंने आपको रीजन दिया था कि सपोज करके आपका एक चार्ज आपने इसको चार्ज दिया, तो इसके अंदर क्या होगा बेटा, इंडक्शन होगा, और इंडक्शन की वजह से एक नया इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, और उस फील्ड की डायरेक्शन जो होगी वो अपोजिट होगी और सेम होगी. इट मींस E inside always 0. So we can say the very first E inside is 0. Okay, the second one is just outside the sphere. It means just outside, it means we have to calculate on the surface. So we E surface is given as kq upon r square. Kq upon r square, we are having the value of k. So by putting the value of k is 9 into 10 raised to power 9 into q, which is given 1.6 into 10 raised to power minus 7 upon r square. The value of r is 12 into 10 raised to power 12 into 10 raised to power minus 2. We have to square this one. Okay, so we will get 9 into 10 raised to power 9, and 16 9 is 144. It means 14.4 into 10 raised to power 9 minus 7, it means 2, divided by square of 12 is 144 into 10 raised to power minus 2 का स्क्वायर करूंगा तो बेटा 10 raised to power 4 होगा, और ये 10 raised to power 4 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा ना, into 10 raised to power 4. अच्छा, ये 144 है, ये 44 है, 10 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, तो we will get 10 raised to power 5 coulomb, Newton per coulomb. Okay, the direction of unit is Newton per coulomb, electric field. Okay, the C part is at a point 18 centimeter from the center of sphere. Okay, the outside point जो है क्या है बेटा, E outside की बात करता हूँ. C part जो है वो आपको सेम करना है. सिमिलरली आपको रखना है kq upon r square, where r का वैल्यू कितना है बेटा, यहाँ r का वैल्यू जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 18 सेंटीमीटर. इट मींस 18 into 10 raised to power minus 2 मीटर. सेम है सब कुछ. आपको क्या करना है, यहाँ 12 की जगह 18 रखना, और सिमिलरली आपको सॉल्व करना है और कैलकुलेट करना है. द क्वेश्चन नंबर 5 है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एन एयर between plates has a capacitance of 8 picofarad. बेटा माइक्रो का मतलब होता है 10 raised to power minus 6, नैनो का मतलब होता है 10 raised to power minus 9, पिको का मतलब होता है 10 raised to power minus 12, और पेंटा का मतलब होता है 10 raised to power minus 15. So the parallel plate capacitor and capacity of that particular capacitor is given 12 picofarad. Sorry, 8 picofarad. 8 picofarad, it means the capacity C equals to 8 picofarad. Picofarad, it means 8 into 10 raised to power minus 12 farad. 8 into 10 raised to power minus 12 farad. Okay, now what will be the capacitance between the distance between the plates? Suppose this is the capacity C, and we know parallel capacity of parallel plate capacitor is given as epsilon naught A by D. Okay, suppose the capacitor is like this. Suppose the capacitor is like this. The plate area of capacitor is A, and the separation between plates is D, and the air is the initial media is air, and the relative permittivity of air is epsilon naught. So we can say if C equals to epsilon naught A by D, which is given as 8 into 10 raised to power minus 12 farad. Okay. Now we are going to insert a dielectric slab or dielectric material between. So now, what will be the capacitance if the distance between the plates is reduced by half? It means the new distance d dash will be d by 2. D dash is d by 2,
and the dielectric media which is inserted between the plates of capacitor and the dielectric constant of that particular media is given as K equals to 6. K equals to 6. We all know that whenever we are going to insert any dielectric media between capacitor plates, then the capacitance of that particular capacitor increased by K times. So we can say C dash, the new capacity of that particular capacitor, C dash will be equals to K times epsilon naught A dash by D dash. A dash by D dash, और we can say यहाँ अगर मैं K रखता हूँ तो बेटा एयर का जो K होता है वो कितना होता है 1 होता है, इसलिए मैंने मेंशन नहीं किया है। अगर मैं यहाँ बात करूँ तो K डैश बोलूँ और K डैश कितना दिया 6, तो C डैश क्या हो जाएगा बेटा आपका 6 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A डैश, और A डैश देयर इज नो चेंज इन द एरिया ऑफ प्लेट्स, वेयरएज एप्सिलॉन नॉट A whereas D is reduced by a half, it means twice आपको उसको reduce किया है, तो मैं लिखूंगा D by 2 okay, by simplifying the denominator में है तो बेटा ये ऊपर जाके रेसिप्रोकल होकर न्यूमरेटर में जाएगा, तो ये 12 epsilon naught A by D, and we all know that the epsilon naught A by D value is which is initial, which is 8, so we will get C dash, the new capacity of that particular capacitor. In this particular case we will get 12 into the capacity of C, so which is 8, so 12 8s are 96 picofarad. The new capacity of that particular capacitor after the distance between plates is reduced by half, and the dielectric constant inserted, which is having a dielectric constant 6, so we will get the new capacity of that particular capacitor. The question number 6, 3 capacitors each of capacitance 9 picofarad are connected. 3 capacitors each of capacitance 9 picofarad are connected in series. ओके, क्वेश्चन नंबर 6 में बोलना चाह रहा है कि सीरीज में आपने 3 कैपेसिटर को ऐड कर दिया है बेटा, है ना। इसकी कैपेसिटी मान लो कि C है तो इसकी भी C है और C है, और C का वैल्यू कितना दिया बेटा 9 पिकोफैराड, है ना। अच्छा, आपसे नेक्स्ट बोलना चाह रहा है बेटा आपसे व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, एंड वी नो कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो C होता है वो ऐड हो जाता है और सीरीज में रेसिप्रोकल होता है, तो 1/CS शुड बी 1/CS शुड बी इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 बाय द पुटिंग ऑफ वैल्यू C1 C2 एंड C3 we will get 1/C plus 1/C plus 1/C, or we can say कि CS equals to C by 3, it means we will get the value of C is 9, so 3 picofarad. Whenever we are going to connect capacitors in series, then the net or equivalent capacitance reduces. If the all capacitors having same capacity, then n times it will reduce. So we are having 3 capacitors, so 3 times it will reduce. Okay, so we will get the combination of series and the capacity is C by 3, it means 9 picofarad. Okay, B part of this particular question, what is the potential difference across each capacitor if combination is connected to 120 volt? Okay, now I am going to connect these particular capacitors across a battery, and battery is having 200 volt, battery is having 120 volt, sorry, battery is having 120 volt. अगर मैंने 120 volt का potential difference apply किया है, we all know that a charge Q will flow over here, and we all know that all capacitors are having same capacity, then the potential will distributed to each capacitor. So 120 को मैं C और C3 parts में divide करूंगा तो we will get 40. और according to question अगर मैं आपसे समझाना चाहूँ तो बेटा Q क्या होता है या V क्या होता है, Q by C, V क्या होता है बेटा Q by C, है ना, और Q by C नेट होता है, कितना होता है बेटा C नेट। अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो Q की बात कर लेते पहले। अगर आप बोलोगे Q होता है बेटा CV, Q क्या होता है CV, अच्छा C नेट जो होगा और वो V नेट, तो Q नेट की बात करता हूं तो C नेट इंटू V नेट। अच्छा, C नेट वाला आपका C by 3 है और V नेट कितना है 120 है, V नेट कितना है 120। अगर मैं बात करूं तो 9 पिकोफैराड, है ना। तो आप इस यहां से कैलकुलेट करोगे Q, और Q तीनों के लिए सेम है तो V क्या होता है बेटा C by Q, V क्या होता है C by Q, है ना। तो अगर मैं यहां से वैल्यू रखूंगा तो we will get 40, सेम एज दैट पर्टिकुलर कांसेप्ट। और आपको पता है कि अगर कैपेसिटर की कैपेसिटी सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अमंग ऑल दीज 3 कैपेसिटर्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, कैपेसिटर्स 2 picofarad, 3 picofarad and 4 picofarad are connected in parallel. 2 picofarad C1, C2 equals to 3 picofarad and C3 equals to 4 picofarad are connected in parallel, and we know in parallel combination Cp is given as C
C1 plus C2 plus C3. So we will get the very first part of this particular question. We have to calculate the capacitance of equivalent capacitance, and CP equals to 4 plus 2 plus 3, 4 to 7 or to 9 picofarad is the net capacity of that particular combination. B part of this particular question, determine the charge on each capacitor. Charge on each capacitor if the combination is connected to a 100 volt supply. अच्छा, बात करते हैं बेटा, पैरेलल में ऐड किया है तो पैरेलल में ऐड करेगा तो क्या सेम होगा? पोटेंशियल सेम होगा। अगर पोटेंशियल सेम होगा तो आपसे क्या पूछेगा? चार्ज पूछेगा। आपसे क्या पूछेगा? चार्ज पूछेगा। ये 100 वोल्ट की बैटरी से आपने कनेक्ट किया, 100 वोल्ट इज गिवन, पॉजिटिव नेगेटिव। एंड सी, बात करता हूं बेटा, यहां से Q जो आएगा वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मान लो कि ये C1 है, ये C2 है और ये C3 है, तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया Q1 Q2 और Q3 में। Q1 Q2 और Q3 में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो अगर मैं बात करता हूं बेटा यहां से, अगर मैं नेट Q निकालूं, अगर मैं बोलता हूं कि Q इक्वल टू क्या होता है बेटा? CV। तो अगर मैं बात करता हूं कि मुझे Q1 चाहिए तो मुझे Q1 क्या चाहिए? C1 V1 और V1 V2 V3 क्या है? पैरेलल में है, तो V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V3 equals to V, which is 100. Okay, so Q1 equals to C1 V1, Q2 equals to C2 V2, and Q3 equals to C3 V3, C3 और V3. Put the value, get the answer. Put the value, get the answer. Question number 8. In parallel plate capacitor with air between the plates, each plate has an area. It means बेटा आपको A दिया है 6 into 10 to the power minus 3 meter square, and the distance between plates, it means आपको D दिया है, which is given in mm, so we have to convert it into meter. 3 mm it means 3 into 10 to the power minus 3 meter. 3 mm it means 3 into 10 to the power minus 3 meter. ओके, बेटा ये आपका कैपेसिटर दिया है, कैपेसिटर प्लेट का एरिया दिया है, ए दिया है बेटा आपको 6 into 10 to the power 6 into 10 to the power minus 3 meter square, and the D distance between capacitor plates which is 3 mm, it means we have to convert it into 3 into 10 to the power minus 3 meter. Okay, calculate the capacitance of the capacitor, and we know capacitance of a parallel plate capacitor is given as epsilon naught A by D, epsilon naught A by D. अच्छा, epsilon naught, the value of epsilon naught is 8.85 into 10 to the power minus 12 है, into the value of A is 6 into 10 to the power minus 3, and the value of D is 3 into 10 to the power minus 3. 10 to the power minus 3, 10 to the power minus 3 will cancel out 2 i's, so 8.85 into 8.85 into 17.70 into 10 to the power minus 12 farad, or we can say 17.7 picofarad. 17.7 picofarad. Okay, so this is the capacity of this particular capacitor. Now we are going to change, calculate the capacitance. If the capacitor is connected to 100 volt supply, what is the charge on each plate of the capacitor? अच्छा, आपसे क्या पूछा गया बेटा? चार्ज पूछा है, तो क्या क्या होता है? चार्ज Q इक्वल्स टू CV, Q इक्वल्स टू CV। अच्छा, C का वैल्यू हमारे पास आ गया, V का वैल्यू कितना दिया बेटा? 100 वोल्ट दिया है, तो Q कैपेसिटर की ईच चार्ज, अगर ये पॉजिटिव ऐसा जोड़ा है कि ये बैटरी है तो ये पॉजिटिव प्लेट होगी, तो ये नेगेटिव प्लेट होगी। चार्ज दोनों पे सेम होगा बट पोलैरिटी अपोजिट होगी, तो Q इक्वल्स टू CV। पुट द वैल्यू ऑफ C 17.7 into 10 to the power minus 12 into value of V, which is value of V is 100 volt. So we will get charge equals to 17.7 into 10 to the power minus 10 coulomb. Simple. Okay, the next question number 9. Question number 9, explain what would happen if in a capacitor given exercise 3 mm thick mica sheet of dielectric constant of 6 inserted. अच्छा, आपसे ये बोला गया बेटा, यही कैपेसिटर जो था इसी सेम क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि इस कैपेसिटर में मैंने जो आपका मीडिया है उसमें 3 mm का शीट डाल दिया। अच्छा, क्या D के बराबर डाला है तो हमें कोई ज्यादा टेंशन नहीं, अगर D के बराबर नहीं होता तो फिर हम सेपरेशन वाला डालते हैं ना, जो मैंने आपको पढ़ाया था नेक्स्ट रिसेंटली। तो यार था बेटा आपका 17.7 into 10 to the power minus 12 farad. ओके, इसी क्वेश्चन में आपसे बोलना चाह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 जो बोलना चाह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 8 में जो आपने है वो आपने K इंसर्ट करवाया और K जो है उसका वैल्यू कितना दिया है? 6 दिया है ना, K का वैल्यू आपको 6 दिया है। तो हमारा जो नया जो C डैश जो हो जाएगा, कौन हो जाएगा? आपसे पूछा गया है
इंसर्टेड द बिटवीन प्लेट्स, तो आपको उसका ए पार्ट पूछा है बेटा, आपसे बोला गया है व्हाइल द वोल्टेज सप्लाई इज रिमेन कनेक्टेड, इट मींस आपको पूछा गया कि क्या होगा जब मैंने इसको, अच्छा आपने बोला कि सर सी डैश जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा के सी, इट मींस आपका सी डैश जो है वो कितना हो जाएगा 6C हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6C। अच्छा पहला केस जो है बैटरी कनेक्टेड है, आपका केस क्या बोलना चाह रहा है, ए बोलना चाह रहा है व्हेन बैटरी रिमेन कनेक्टेड। आपको मैंने पढ़ाया था कि बैटरी कनेक्टेड है तो क्या होगा और बैटरी डिस्कनेक्टेड है तो क्या होगा। मैं अगर ए पार्ट की बात करता हूं तो अगर बैटरी कनेक्टेड है बेटा, ये आपका कैपेसिटर है, ये आपकी बैटरी कनेक्टेड है सी, ओके तो आप बोलोगे सर इसको पास क्या है, Q आया, V आया और C इसकी कैपेसिटी है। अगर बैटरी कनेक्टेड है तो आप सोचिए कि Q इक्वल्स टू क्या होता है बेटा CV, Q इक्वल्स टू CV होता है अगर मेरा C इंक्रीज हो रहा है, या अगर मैं यहां से बात करूं V की, क्योंकि बैटरी कनेक्टेड है, मैं बात करूं तो V होता है बेटा Q बाई C, V होता है Q बाई C। अगर आप बोलोगे सर बैटरी कनेक्टेड है तो वोल्टेज रिमेन सेम, वोल्टेज remain same in case of whereas the battery is connected to capacitor and we are going to insert a dielectric constant in between the plates and we know C increases, it means Q also increases, it means आपका जो Q जो होगा वो भी इंक्रीज होगा क्योंकि V जो है बेटा Q by C का रेशियो है, it means अगर आपका Q by V सेम है मतलब Q by C सेम होना चाहिए, Q by C सेम होना चाहिए, या मैं बोलूं कि Q इक्वल्स टू CV की बात कर लेता हूं तो V तो सेम है मतलब Q प्रोपोर्शनल टू C आ गया, Q प्रोपोर्शनल टू C आ गया। अगर C जो है वो 6 टाइम्स बढ़ता है तो Q भी 6 टाइम्स इंक्रीज होगा, सिंपली, ठीक है। अगर नेक्स्ट केस में ऐसा बोलना चाह रहे अगर बैटरी कनेक्टेड ना हो तो क्या हो जाए, बैटरी कनेक्टेड ना हो तो क्या हो जाए, तो उस केस में कौन कांस्टेंट हो गया बेटा, उस केस में आपका Q कांस्टेंट हो गया। इसी का बी पार्ट बोलता हूं बैटरी रिमूव्ड, बैटरी रिमूव्ड। अच्छा बैटरी रिमूव्ड हो गया तो क्या हो गया, Q फिक्स हो गया, क्योंकि अब चार्ज जो है वो बैटरी से मिल रहा था तो बैटरी हटा दिया तो क्या फिक्स हो गया, Q फिक्स हो गया। तो इस बार क्या हो जाएगा कि V इक्वल्स टू Q बाई C, V इक्वल्स टू Q बाई C। अच्छा बात करते हैं कि Q इक्वल्स टू CV, Q इक्वल्स टू CV। अब देखो Q फिक्स हो गया, क्या हो गया, Q फिक्स हो गया। इट मींस अगर आपका C बढ़ रहा है, इस मींस आपका जो C है वो इंक्रीज हो रहा है, कितने टाइम्स 6C हो रहा है ना, तो आपका V क्या होगा, रिड्यूस होगा, V क्या होगा, रिड्यूस होगा, V बाई 6 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि सर आपने बैटरी को रिमूव कर दिया और पहले कितना था आपका 100 था, तो 100 को 6 से डिवाइड करोगे तो 16.4 जो भी आपका 16.6 आपका आंसर आ जाएगा, है ना। क्यों हो जाएगा, क्योंकि सर हमारा इस बार Q फिक्स है एंड वी आर गोइंग टू इंसर्ट अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन प्लेट ऑफ कैपेसिटर, देन वी ऑल नो दैट कैपेसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर कैपेसिटर इंक्रीजेस, सो वी हैव टू रिड्यूस टू बैलेंस Q, सेम, ओके। द नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 10, a 12 picofarad capacitor connected to 50 volt battery, how much electrostatic energy stored in this particular capacitor? इट मींस आपका कैपेसिटर जो है वो 12 पिकोफैराड का है और आपने क्या किया बेटा, उसको एक बैटरी से कनेक्ट किया है, एक बैटरी से कनेक्ट किया है और बैटरी का जो कैपेसिटी जो वोल्टेज जो दिया है बेटा वो आपको दिया है 50 वोल्ट, ओके। एंड द कैपेसिटी की कैपेसिटी दिया है वो 12 into 10 raised to power minus 12 फैराड, 12 picofarad, okay। We have to electrostatic energy U equals to बेटा U के मैंने आपको 3 फॉर्मूले बताए थे, stored energy half CV square, Q square by 2C और हाफ QV। अच्छा अब यहां बात करते हैं तो सर हमारे पास C है और V है, तो हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये वाला। अच्छा बात करता हूं तो हाफ CV स्क्वायर, तो U इक्वल्स टू हाफ इंटू C बोलो तो कितना है बेटा 12 इंटू 10 raised to power minus 12 इंटू V स्क्वायर। अगर V की बात करता हूं तो V है बेटा 50 और 50 का स्क्वायर करते तो 2500, 50 का स्क्वायर करते तो 2500। अच्छा ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 25 6 150, सो 150 000 हो जाएगा आपका, ये 00 यहां से इंटू 10 raised to power minus 12 जूल। या अगर मैं इसको सिंपलीफाई करूंगा तो मैं इसको लिख दूंगा, ये 4 टाइम्स 0 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1.5 इंटू 10 raised to power minus 8 जूल। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं बेटा, आपका क्वेश्चन नंबर 11 है 600 पिकोफैराड कैपेसिटर चार्ज बाय अ 200 वोल्टेज सप्लाई, ओके। इनिशियली आपने 600 पिकोफैराड का एक कैपेसिटर है, उसको चार्ज कर लिया आपने 200 वोल्ट की सप्लाई से। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो ऐसा बोलना चाह रहा है, ये 600 है, आपने इसको 200 की एक बैटरी से क्या कर लिया बेटा, आपने इसको कनेक्ट चार्ज कर लिया, ठीक। C इक्वल्स टू 600
पिकोफैरेड। ओके, चार्ज कर लिया मैंने। अब उसको क्या कर लिया, रिमूव किया। उसको क्या कर लिया, अब नाउ बैटरी रिमूव किया उसको, तो ये चार्ज हो गया हमारा कैपेसिटर। कितने वोल्टेज से चार्ज हुआ, तो ये 200 वोल्ट से चार्ज हो गया। अब इसी कैपेसिटर को मैं किससे कनेक्ट कर रहा हूं, एक सिमिलर दूसरे कैपेसिटर से कनेक्ट कर रहा हूं। अच्छा सर, अगर कैपेसिटर से दूसरे से मैंने कनेक्ट किया है तो इसका C था, तो इसका कैपेसिटी भी C है। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा गया हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज लॉस्ट इन दिस पर्टिकुलर प्रोसेस। हो सकता है आपसे ऐसा ना पूछे, आपसे पूछे कि V फाइनल, आपसे पूछता कि अगर इसका V था तो इसका कुछ 0 था, अभी इनिशियली चार्ज नहीं था ना, तो आपसे पूछ लेता। और अगर आपको क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो बेटा आप ध्यान रखना, आप सेम पोलरिटी के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, सेम पोलरिटी के साथ कनेक्ट कर रहे हैं तो V फाइनल अगर मैं बात करूं दोनों का, कुछ नया पोटेंशियल होगा क्योंकि चार्ज कुछ शिफ्टिंग होगा। तो V फाइनल मैंने आपको बोला था C1V1, मैंने आपको बोला था C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2 अपॉन C1 प्लस C2। ध्यान रखना, अगर V2 0 है, दूसरा कैपेसिटर जो अनचार्ज था, तो V2 क्या था बेटा, यहाँ 0 है, तो आप कैलकुलेट कर लोगे। अच्छा, V फाइनल जो आएगा वो हाफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्योंकि कैपेसिटर भी हाफ हो जाएगा, क्योंकि कैपेसिटर सेम है तो चार्ज हाफ हाफ हो जाएगा, और चार्ज हाफ हो गया और तो मतलब C जो है नेट है वो क्या हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा। C ट्वाइस पैरेलल में है ना, तो पैरेलल में C बढ़ता है तो क्या हो जाएगा आपका, अगर बैटरी से हटा दिया तो चार्ज हाफ हो जाएगा। चार्ज हाफ हो गया तो V देख लो, उसके अकॉर्डिंग सेट हो जाएगा। अच्छा, बात करता हूं, आपसे पूछा गया है कि एनर्जी लॉस। अच्छा, तो लॉस तो मैंने आपको बोला कि लॉस आपका क्या हो रहा है, अगर ये अपोजिट पोलरिटी क्वेश्चन में दिया होता तो यहाँ माइनस कर लेते हैं हम। अच्छा, लॉस की बात करते हैं या एनर्जी लॉस की बात करते हैं, हम डायरेक्टली या तो आप क्या करो, इनिशियल एनर्जी निकालो, फिर दोनों की फाइनल एनर्जी निकालो। अच्छा, इस केस में मैं आपको बताता हूं, अगर इनिशियल एनर्जी U है, इनिशियल एनर्जी U है तो फाइनल में कितनी होगी बेटा, U/4 और U/4 होगी, है ना। तो लॉस कितना हुआ, U/2 का लॉस हो गया, है ना, U/2 का लॉस हो गया, क्योंकि U/4 इसके पास है, U/4 अगर यहाँ 100% है तो 100 का 50% लॉस होगा, तो कितना बचेगा इसके पास, 25, इसके पास 25 इसके पास। अगर एनर्जी लॉस आपसे डायरेक्टली पूछा जाए तो आपको फॉर्मूला पता है, हाफ C1C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, है ना। अगर ये अपोजिट पोलरिटी के साथ होता तो ये V1 प्लस V2 का होल स्क्वायर होता। यहाँ अगर मैं बात करूं वैल्यू रखता हूं तो ये हाफ हो जाएगा। C1 का वैल्यू है 6 इंटू 10⁻⁻10, है ना। पिको को मैं -12 लिखूंगा तो 00 कैंसिल आउट हो जाएगा, इंटू C2 भी 6 इंटू 10⁻10 अपॉन C1 प्लस C2 में 2 इंटू C1 C2 2 इंटू 6 इंटू 10⁻10 इंटू V1 माइनस V2, और V1 कितना है बेटा आपका, तो V1 आपका गिवन है 200 वोल्ट, V1 आपका गिवन है 200 वोल्ट का स्क्वायर कर दूंगा। क्या कर दूंगा, 200 माइनस V2 तो 0 था का स्क्वायर करूंगा। अच्छा सर, ये मेरा जो है ये 6 इंटू ये कैंसिल आउट हो गया। अच्छा, 2 2 जा 4 बन रहा है, तो ये 2 का स्क्वायर होगा तो 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। तो आपका जो आंसर आएगा एनर्जी लॉस वो आ जाएगा 6 इंटू 10⁻10 इंटू, अब ये 40,000 बन रहा था तो 40,000 का 4 तो कैंसिल आउट हो गया, तो ये कितना बचेगा, 10⁻4 प्लस का बचेगा बेटा, ये 10⁻2 का स्क्वायर है ना, तो ये कितना आ जाएगा 6 इंटू 10⁻6 जूल, ये आपका एनर्जी लॉस है। बात करते हैं बेटा एडिशनल क्वेश्चंस। एडिशनल क्वेश्चन सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए दिए गए हैं, आप ट्राई करना, जब हम फिजिकली क्लास में आएंगे तो वो क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा, चैप्टर 2 के अभी मैंने डिस्कस कर लिए हैं। फिर भी आपको कहीं भी किसी भी बुक हो, चाहे आपके पास अरिहंत के बुक हो, आपके पास BC पांडे हो, आपके पास अरोड़ा SL अरोड़ा हो, या आपके पास रेशमी हेलिडे हो, HC वर्मा हो, कोई भी बुक हो, आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं। whenever you get difficulty then you may ask to me now or later on, hope so ki by 1st of September we will be there in classroom, okay, so at that time you may ask to me any kind of doubt. Thank you.